Hello students, I am Puneet. We are going to start now lesson number 18, pollution of air and water. अब भी हम करेंगे इसका question number 9. What is ozone layer? What will happen if the ozone cover of the atmosphere is removed? Answer. The ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere from approximately 15 to 35 kilometers above Earth. Although its thickness varies seasonally and geographically, this layer protects the Earth from the sun's powerful ultraviolet radiation. If ozone layer is removed, the human beings and other organisms would be exposed to the UV rays of the sun. Due to the exposure to the UV rays, diseases such as cataract, cancer, etc. will be caused, which may result into death. The second effect of the depletion of ozone layer will be the melting of ice. थोड़ा सा समझ भी लेते हैं. अर्थ से 15 to 35 किलोमीटर ऊपर ओजोन लेयर होती है. ये स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले पोर्शन में होती है. अगर इस लेयर की थिकनेस की बात करें तो ये सीजन और ज्योग्राफी के हिसाब से बदलती है. ये ओजोन लेयर अर्थ को सूर्य की अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है. अगर ये ओजोन लेयर का कवच एयर से हटा दिया जाए तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ग्लेशियर्स की सारी बर्फ पिघल जाएगी और मनुष्य में कई प्रकार के डिजीजेस जैसे स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर आदि हो जाएगी, जिससे जान तक भी जा सकती है. ठीक है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, why we should plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood? Answer. We should plant trees and nurture the ones already present in the neighborhood. First, to reduce air pollution, to control global warming. ठीक है. हमें ट्रीज को उगाना चाहिए और जो पहले एग्जिस्ट करते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पेड़ पौधे एयर पोल्यूशन को कम करते हैं. ये पेड़ पौधे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, write short note on Ganga action plan. Also list some reasons for pollution in the river Ganga. Answer. The Ganga action plan was an ambitious project launched in the year 1986 by the then Prime Minister Rajiv Gandhi to reduce the increasing pollution levels in the river Ganga. It aimed at reducing pollution level by treating domestic sewage and preventing the industrial waste from entering the river, etc. Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga, यानी कि NMCG in 2016. Some reasons for pollution in the river Ganga are as under. First, human waste. Second, municipal waste. Third, dead bodies of human beings and animals. Fourth is industrial activities. Then fifth is religious activities. इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. गंगा एक्शन प्लान एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसको उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी ने 1986 में लॉन्च किया था. इस प्रोजेक्ट का एम गंगा रिवर में बढ़ते पोल्यूशन को कम करना था. इस प्रोजेक्ट के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए डोमेस्टिक सीवेज को ट्रीट करना था और इंडस्ट्रियल वेस्ट को गंगा रिवर में फेंकने से रोकना था. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का नाम दिया गया है. गंगा रिवर में पोल्यूशन के कई कारण हैं, जैसे ह्यूमन वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज को गंगा रिवर में फेंकना, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रिलीजियस एक्टिविटीज भी गंगा रिवर के पोल्यूशन के कारण है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय क्लोरिनेशन? आंसर. It is a commonly used chemical method for purifying water. It is done by adding chlorine or chlorine compounds to the water. This
method is used to kill certain bacteria and other microbes in tap water as chlorine is highly toxic. In particular, chlorination is used to prevent the spread of waterborne diseases such as cholera, dysentery and typhoid. ये भी समझ लेते हैं कि क्लोरिनेशन क्या होता है। क्लोरिनेशन पानी को प्योरीफाई करने के लिए आमतौर पर यूज किया जाने वाला केमिकल मेथड है। इस मेथड में क्लोरीन या क्लोरीन कंपाउंड्स को पानी में ऐड किया जाता है। इससे पानी में पाए जाने वाले कई तरह के बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है। क्लोरिनेशन की कई वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कॉलरा, डायसेंट्री एंड टाइफाइड को फैलाने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्योरीफाइंग वाटर टू मेक इट fit for drinking? Answer. First है filtration, second है boiling, then third is by adding chlorine tablets. पानी को साफ करने के लिए कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड है ताकि पानी पीने लायक हो सके? आंसर, ये मेथड है बॉइलिंग, फिल्टरिंग एंड क्लोरिनेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। आंसर, water pollutants can be classified into the following three categories. First, physical water pollutants. These include heat and oil spills. Second, biological water pollutants. These include pathogens, for example, viruses, protozoa, fungi, etc. Third is chemical water pollutants. These include organic wastes, for example, sewage, detergents, fertilizers, etc. इसको थोड़ा सा समझते भी हैं। वाटर पॉल्यूटेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट, जैसे हीट एंड ऑयल स्पिल्स। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सा ऑयल बाहर से शिप्स के थ्रू सी के रास्ते इंपोर्ट किया जाता है। कई बार इन शिप से ऑयल लीक कर जाता है, जिसके कारण सी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। सेकंड है बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट। इस कैटेगरी में वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई आते हैं। थर्ड, केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स, सीवेज, फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स आदि से होने वाला पोल्यूशन इस कैटेगरी में आता है। 15th, which are the various sources that pollute water? Answer, the various sources which pollute water can be categorized as under. First, point sources. The sources of places of water pollution which are easily identifiable are called point sources of water pollution. For example, factories, power plants from which a pollutant is discharged or emitted. Second, non-point sources. These sources are scattered and tracing pollution back to a single source is difficult. For example, runoff from fields, construction sites and acid rain. पानी को पोल्यूट करने वाले सोर्सेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर वाटर पोल्यूशन के प्लेसेस या सोर्सेज को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके तो उनको पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कहते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, जहाँ से पॉल्यूटेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। अगर पोल्यूशन करने वाले सोर्सेज स्कैटर्ड हो और पोल्यूशन का एक सिंगल सोर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो तो इसको नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कहते हैं। यहाँ हम पोल्यूशन के सोर्स को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं कर सकते, जैसे खेतों से ओवरफ्लो कर रहा पानी कई जगह से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स और एसिड रेन भी नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, इज स्मॉग एंड एयर पॉल्यूटेंट? आंसर, स्मॉग इज a type of intense air pollution which is formed by the combination of smoke and fog. Smoke
Smoke is a serious problem in many cities and continues to harm human health. क्या स्मोक एक एयर पॉल्यूटेंट है? स्मोक एंड फॉग के कॉम्बिनेशन से स्मोक बनती है। ये इंटेंस एयर पोल्यूशन की एक टाइप है। कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई में स्मोक एक सीरियस प्रॉब्लम है और इससे ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन। The use of excessive fertilizers and pesticides leads to the deficiency of an important substance in water. Name the substance. Answer. The use of excessive fertilizers and pesticides may result into runoff from the fields into waterways. These fertilizers and pesticides act as nutrients for the algae to grow. These algae use up oxygen that fish and other animals need. It leads to the deficiency of oxygen in the water. क्वेश्चन ये है, अगर हम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को ज्यादा यूज करें तो इससे पानी में किस सब्सटेंस की कमी हो जाती है? तो आंसर है, अगर हम खेतों में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो पानी के ओवरफ्लो होने की सूरत में ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वाटर वेस्ट जैसे रिवर्स आदि में चले जाते हैं। ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एल्गे की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एल्गे ऑक्सीजन को यूज करते हैं जो कि फिश और दूसरे एनिमल्स की जरूरत है। इस कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट। A large number of trees are planted by the people in the month of July every year. This occasion is called first Van Mahotsav, B Plantation Month, C Forest Conservation Day, then D Wildlife Week. आंसर है वन महोत्सव। थोड़ा सा समझते भी हैं। हर साल जुलाई के महीने में बहुत से पौधे प्लांट किए जाते हैं। इस ओकेजन को वन महोत्सव कहा जाता है। इन ट्रीज के बिना हम लोग धरती पर सरवाइव नहीं कर सकते। इन ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आमतौर पर जुलाई के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मोस्टली मॉनसून सीजन की शुरुआत हो जाती है और इस पीरियड में लगाए गए पौधों के सरवाइव करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड CO2 contributes to global warming. Explain. Answer. Combustion of fossil fuels in vehicles, factories, homes and generation of electricity produce CO2 in high amounts. It is being emitted into the atmosphere at a very high rate which makes it greater in concentration than the other gases. So with the increasing numbers of CO2 emitting sources in the world, you can imagine the amount of heat that is getting trapped in the atmosphere, thus contributing to global warming. क्या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? आंसर है, सड़कों पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की गिनती मिलियंस में पहुंच गई है। फैक्ट्रीज की गिनती भी बढ़ रही है। कई जगह कोल बेस्ड पावर प्लांट्स चल रहे हैं। ये व्हीकल, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स काफी मात्रा में CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में जा रही है कि दूसरी गैसेस के कंपैरिजन में इसकी कंसंट्रेशन हवा में ज्यादा हो रही है। इस तरह दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज की गिनती डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इससे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होने वाली हीट की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% योगदान इस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, one of the gas is 21% part of the air and is essential for the survival of human beings. This gas is called nitrogen, oxygen, ozone or argon. Answer is oxygen. एयर कई गैसेस का मिक्सचर है। वह गैस जो एयर का 21% है और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं। एयर का 78% हिस्सा नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट है, which of the following is not a source of air pollution? फर्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, सेकंड विंडमिल, थर्ड बर्निंग ऑफ फायरवुड, देन फोर्थ इज पावर प्लांट। सो आंसर इज विंडमिल। ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं या लकड़ी को जलाने से पैदा हुआ धुआं या कोल बेस्ड पावर प्लांट, ये सभी एयर पोल्यूशन का सोर्स है। विंडमिल क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, रमेश wishes to contribute in reducing air pollution. Which vehicle should he use for going to school? A car, B auto rickshaw, C school bus, D scooter. So answer is school bus. रमेश एयर पोल्यूशन घटाने में योगदान देना चाहता है, उसको स्कूल जाने के लिए कौन सा व्हीकल यूज करना चाहिए? कार, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस या फिर स्कूटर। सो आंसर है स्कूल बस। स्कूल बस में एक ही समय पर बहुत से बच्चे ट्रेवल कर लेते हैं, इसलिए अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल बस के द्वारा स्कूल जाते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन में कुछ हद तक कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट एयर बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स विदाउट फूड। कमेंट। सो आंसर फॉल्स। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड but we cannot survive even for a few minutes without air. हम हवा के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, पर खाने के बिना कुछ मिनट भी नहीं। कमेंट। आंसर है फॉल्स। हम जानते हैं कि हम खाने के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, पर हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं जीवित रह सकते। इससे हमें पता चलता है कि एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो उन्हें एयर से मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो कि एयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल, डीजल। कमेंट। आंसर फॉल्स। Carbon monoxide is produced by the incomplete burning of fuels such as coal, petrol, diesel. So question है, क्या कोल, पेट्रोल या डीजल की कंप्लीट बर्निंग से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है? आंसर फॉल्स। कार्बन, पेट्रोल या डीजल की इनकम्प्लीट बर्निंग के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। सिगरेट से निकलने वाले धुएं और इंडस्ट्रियल फर्नेस से निकलने वाले धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the type of pollution which is likely to affect Taj Mahal in Agra to a greater extent is A. air pollution, B. water pollution, C. soil pollution, then D is noise pollution. Answer is air pollution. किस तरह का पोल्यूशन आगरा के ताजमहल को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? आंसर एयर पोल्यूशन। ताजमहल इंडिया का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ताजमहल को एयर पोल्यूशन के कारण काफी नुकसान पहुंच रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर पोल्यूशन ताजमहल के व्हाइट मार्बल को डिसकलर कर रहा है। नेक्स्ट है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ए. reduction in the use of chlorofluorocarbons. B. reduction in the cutting of forest trees. C. reduction in pollution of fresh water sources. Then D. reduction in the emission of greenhouse gases. So answer is reduction in emission of greenhouse gases. थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं।
क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसको क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था और ये प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 में लागू किया गया। इस ट्रीटी का संबंध ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने से है। लगभग 192 कंट्रीज इस ट्रीटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अभी आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। If you like our video,